लास्ट हमने क्या किया, we have ended up with the how we can get a sequence of nucleotide. We can get the sequence of protein as well about a certain gene, and we know somehow how to what is the difference between all those transcripts. याद है आप लोगों को सारे transcripts? Okay, it is possible that one gene might be producing multiple messenger RNA, and you should know which messenger RNA you are talking about. It is that much critical. So how about finding a gene sequence of any other gene? Both hogi TP53. Online students can recommend, you guys can recommend any gene which you want me to study, just to refresh ourselves. आधा घंटे में refresh हम warm up हुए हैं. Okay, MPhil का fill नहीं भूलना. Fill philosopher के लिए you can call yourself philosopher अगले साल. Wow, amazing नहीं है? लोग खानदान में आपसे सोच के बात करते हैं, भाई मुंडा MPhil करने है ना, होता है ना, जरा रिश्तेदार भी करते हैं, पता नहीं कितना को पढ़ लेके आ रहा है, उनको ये नहीं पता लगता कि सारा दिन वहां वेले बैठ के आ गए, थोड़ा उधर. They are very much impressed with you guys, you know, पढ़े लिखे. मेरी मामा को, मम्मी को एक दिन किसी ने कहा, मुबारक हो तुम्हारा मुंडा तो बड़ा. मैं आज नहीं कितने पढ़ता था, कितने पढ़ता मोहन. So I mean people expect us to know all these things, so you should be. चलो any other gene, हो सकता है आपने अगले चंद महीने के बाद उस पर रिसर्च करनी हो, आपके दिल में किस जीन को देख के कुछ होता है. वो हो गया यारो कल मिक मेरा जो इंटरेस्टिंग लगा मुझे. ब्राका पे बहुत लोगों ने काम कर लिया, छड़ ज्योति जान. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. मिक पे बड़े लोगों ने काम, वैसे आप जो चीज गूगल करेंगे ना वो सब पे काम हो चुका है. आप कहेंगे हमने करना क्या है, मतलब ऑलरेडी देयर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज आउट देयर. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू सर्च, अगर इंटरनेट मेरी मदद करे, द मिक जीन. ओके, फर्स्ट sometimes when I put a simple word, the NCBI don't have any understanding कि मैं Homo sapiens मिक की बात कर रहा हूँ, that or I am talking about rabbit or mouse or TNF भी कर सकते हैं. तो NCBI को पता, इसलिए वो आपको सारी ऑप्शन दिखा देता है. सबसे बड़ी करके उसने दिखाई है, वो अस्यूम कर रहा है कि I might be talking about an Homo sapiens. And as a researcher you should know certain things. If all the letters of the gene are in capital, that means we are talking about humans. कानून है ये. If first letter is capital, the rest are small, that means we are talking about other species, including mouse and other things. ठीक है, याद रखना जी. कभी ये बोंगी मार दी ना आपने किसी लेटर में प्रोफेसर को, उसने वहीं से जुत्ती फेंकनी है. टू टॉकिंग अबाउट ह्यूमन जीन, और आपने पहला वर्ड कैपिटल लिखा है और आगे जो है वो आपने दो छोटे लिखे. उन्होंने कहना फिट मुंह तेरा दे नाल तेरे प्रोफेसर था जिन्हें तेन पढ़ा के थे देकर पहुंचाया. ये वो बातें हैं, these are the information which actually make you a stronger researcher, a able researcher. यार हमें पता है इन सारी टेक्निकलिटीज का. अपार्ट फ्रॉम अब वो जो लेक्चरिंग वाला फिनोमेना है ना, वो जरा पुराना जमाना हो गया, वो हमने कर ली वैसे जितनी हमने करनी गुजारिश होगी. Let's start. So I'm not going into the details of the lecture which I have given on that day, that how you will be able to end up in the nucleotide sequence. Let's see how many transcripts are there. Can you see? I reached this. I reached the right place. Can you see? Oh, ये तो मेरे से आगे जा रहा है. Can you see? Where is that? Oh my God. ये क्या मसला है इसको? ये आगे के जा रहा है मेरे से. Sorry यार. इससे let me see. Actually मैंने सही जगह पे जाके अपनी तरफ से रोक दिया. Okay, here we go. NCBI reference sequences. How many transcripts you can see on this page? Let's start. NM this one 2. Oh, 2. It's easier. Just 2 transcript. MIC is easy to deal. Okay, which one of them I should use as a general sequence of the MIC gene? इनमें से MIC gene का sequence मेरे पास कौन सा होगा, कहाँ से होगा MIC gene का sequence? पहले वाले को पढ़ता हूँ, दूसरे वाले को पढ़ता हूँ, दूसरे की डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, पहले की डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, और मुझे बताना है आप लोगों ने कि इन दोनों में से कौन सा है जिसके सीक्वेंस को मुझे MIC का सीक्वेंस, जनरल सीक्वेंस कंसिडर करना पड़ेगा, जो जनरली तौर पर लोग काम कर रहे हैं. Okay, read and just let me know. If you can read, just you are lucky if you can read the thing.
There are two transcripts over there. Which one of them you believe is the MYC gene transcript? Major transcript. I don't know, but description same है. फिर इनका सीक्वेंस भी तकरीबन कुछ छोटा थोड़ा सा फर्क होगा वैसे. We should see the difference. वैसे आप लोगों के अंदर ये तलब होनी चाहिए कि इन दोनों में फर्क क्या है. You should put the sequence of the first MYC and then the sequence of the. आगे आ जाना हमजा, आप भी निम्रा, आप भी आगे बैठ जाना. हमें इसकी हाँ लैपटॉप है तो परफेक्ट है, नहीं तो आप लोग आगे यहाँ पर भी बैठ सकते हैं. मैंने आपको तस्वीर दिखाऊंगा एंड में जाके. एक स्टूडेंट यहाँ बैठी हुई है और मैं जो है ना वो बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मेरे लैपटॉप बड़ी मजे की पिक्चर है. एंड एवरीबॉडी बिलीव्स कि एक स्टूडेंट जो ना प्रेजेंट कर रहा है और टीचर वैसे बैठ के उसको देख रही है कि ये सही प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं. अब ये वाली चेयर ले लो, इसको इधर ओके. अब आपने यहाँ पर कुछ अहम की पॉइंट्स मेरे संभाल के रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है. तो सबसे पहला तरीका, सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू वांट टू गो टू द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड यू विल गेट फ्रॉम हियर. NM सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन यू विल गेट फ्रॉम हियर. बट ऑफ कोर्स इस जगह पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी होएगा एंड यू विल गेट द प्रोटीन सीक्वेंस एज वेल. वो सारी इंफॉर्मेशन ही होगी इस पेज के ऊपर. सो आई हैव क्लिक्ड इट एंड आई एम वेटिंग. NM इज अ कोड जो NCBI यूज करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बताने के लिए. ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ है. ओके. और NP का मतलब होता है प्रोटीन सीक्वेंस कोड. यानी कि NCBI पोर्टल जब इसी इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करेगा, कोड्स बताएगा, तो उसके कोड्स यूजुअली NM पे शुरू होंगे, व्हिच कैन गिव यू अ हिंट दिस इज अ सीक्वेंस मेंटेन्ड बाय NCBI. इसका मतलब ये नहीं है कि MYC जीन का सीक्वेंस कोई और होगा जब हम किसी और पोर्टल पे जाएंगे. वही होगा, लेकिन उस पोर्टल ने MYC जीन के सीक्वेंस को रखने के लिए अलग नाम इस्तेमाल किया होगा. किसी को पता है कोई और पोर्टल कौन सा होता है NCBI के अलावा? हाँ, एक्सप्रेसिव प्रोटीन के लिए होता है. शाबाश. और यूनिपोर्ट भी होता है. ओके, थैंक यू. और चलो वो भी होता है, ठीक है, होता है. यानी कि वो आता है जब आप जीन गूगल करते हैं ना तो नाम लिखा हुआ आता है उसका भी. आई इट मेक सेंस. दुनिया में जो मशहूर पोर्टल्स हैं ना, आप याद रख लें, जो आपके लिए काफी हैं जिंदगी गुजारने के लिए, बाकी जिंदगी गुजारने के लिए, उनमें से आपको अपनी मतलब चीजें मिल जाएगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. NCBI is one of them. Use NCBI for two things. Number one, use NCBI to get the nucleotide sequence. Use NCBI to get the consensus cDNA sequence. दोनों जुमले लिख लेना, याद रखना, मुझे भूलना ना बाद में, ठीक है. NCBI को किस काम के लिए यूज करेंगे? ये पेजेस यहां से लेना कुछ चाहिए हो. NCBI यूज करेंगे नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए. नंबर 2 ऑफ कोर्स आप इसको इस्तेमाल करेंगे वो शुरू की इनिशियल इंफॉर्मेशन है जीन का नाम क्या है, इसका कोई कोड नाम तो नहीं है, हम के बाद जाना है. सॉरी, याद तो करो यार. ऑफ कोर्स आप इसको इस्तेमाल करेंगे NCBI को फॉर अदर पर्पसेस, लाइक कि जीन का नाम क्या है, इसकी समरी क्या है, फिर अल्टरनेट नेम्स कौन से हैं इसके. समटाइम्स यू जस्ट वंडर कि यार इसके दूसरा नेम ज्यादा फेमस है जो आपको पता था. यू शुड नो. वो जो पहले पेज के ऊपर जीन की डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ पर भी होती है. यू शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. टू थिंग्स. फर्स्ट, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसे निकालना पता लग गया. इसके फीचर्स को हमने कल लास्ट टाइम एड्रेस कर लिया था, मैं उसको फोकस नहीं कर रहा. हाउ यू कैन रीड द ऑल द फीचर्स. इसका कंसेंसस cDNA सीक्वेंस, डिड यू रिमेंबर द CDS? मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहा हूं. दैट डज नॉट मीन द अदर थिंग्स आर नॉट देयर. CDS इज कॉल्ड एज ओनली द कोडिंग पार्ट ऑफ दैट जीन. तो इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं? यू कैन सी इट इज रिटन हियर. अगर आप इसको पढ़ रहे हो 1 थिंग so nice. Okay, 1161 से लेकर, कैन यू सी, 1161 से लेकर 2522, ये CDS सीक्वेंस है. अब आप सोचेंगे कि यार दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर फ्यूचर. यू नो CDS सीक्वेंस, बट दैट मीन इट मींस यहां से स्टार्ट कोडॉन शुरू होता है और यहां पे स्टॉप कोडॉन है. दिस इज द रीजन व्हिच यू आर इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस ऑफ दैट जीन. अगर इस जगह पे कोई गड़बड़ है, that means that will going to create a mutation which will affect the sequence of the protein. अगर यहाँ कोई गड़बड़ है, that will going to change
द प्रोटीन स्ट्रक्चर, वो जो लास्ट लेक्चर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पढ़े थे, जिसमें म्यूटेशन हो सकती हैं, सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशंस, silent mutations, frame shift mutations, all those mutations are possible if anything bad happens in that part. So as a researcher, you might be very much, scared, or you can reserved or interested in this portion. How you will be able to get this portion? There are many ways. I can tell you. First thing is that you can click that place. It will going to highlight that region for you. You can see exactly from number from where it is started and from where it is stopping. This is the start codon. विक में इतनी खास बात है, कोई विक में इतनी खास बात है? ओके, वी विल सी. दिस इज वन ऑफ द वे. हाँ, इसका स्टार्ट तो एम से हो रहा है. बताया इनका तो एक ही कोड होता है ना. ये तो कोई मसला है इसको. NCBI is not giving us like the ATG here. Okay, it should be instead of CTG, it should be ATG. इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता NCBI. I don't believe. There must be something wrong. But आप इसको नोट डाउन कर लें और अलग से मिक जीन का सीक्वेंस निकाल के CDS सीक्वेंस देखने की कोशिश करें. Okay, it should start from where? ATG. ओ ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना. It should start from ATG, जो कि मिथाइन इनकोड करता है. It should end where? देखते हैं. A stop codon, and it is ending in a stop codon. अगर आप नहीं देख पा रहे, मैं बता रहा हूँ TAA. And that makes sense. Yeah, I'm talking about nucleotide sequence जो DNA पे है. So that makes sense. हमें इसका सीक्वेंस पता लग जाता है. अच्छा, एक और जगह होती है जहां पर हम कंसेंसस cDNA सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं. NCBI जो है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिनमें से एक इंफॉर्मेशन ये जीन का सीक्वेंस है और दूसरी इंफॉर्मेशन कंसेंसस cDNA सीक्वेंस है. और कंसेंसस cDNA सीक्वेंस के लिए दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट पोर्टल. इसको लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, जहां they have generated a separate. Now that separate portal which they have created is under the domain of NCBI. तो NCBI ने बहुत सारे सब डोमेन्स हैं, बहुत सारे सब डोमेन पोर्टल्स मौजूद हैं. So one of the portal is called as the portal which help us to reach the consensus cDNA sequence. ठीक है, हम यूं करते हैं कि हम उस पोर्टल को एक्सेस करते हैं. जाओ पीछे. ये कैसे जाएगा? जी तुझे नहीं देखना. Okay, so one of the way is to find that consensus, जो भी है आप इसे ही कर देगा, consensus sequence of gene. मैं जानबूझ के ना आपकी तरह रैंडम गूगलिंग कर रहा हूं ताकि हमें पता लगे कि वो कहां पड़ा हुआ है. मुझे पता है मैं एक क्लिक करूंगा वहां पहुंच जाऊंगा, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट शॉर्टकट. ओके, दोबारा लिखता हूं. Consensus cDNA sequence. This is the coding sequence of every gene, and this is the website which is designed for that purpose. This is the portal. ये portal NCBI के अंदर आता है. Can you see? The code is called as CCDS. So CCDS is the consensus cDNA sequence of every gene. So if you are working on a gene, you might not be interested in the 5' UTR, you might not be interested in the 3' UTR. If you are cloning a gene, अगर आप एक जीन क्लोन कर रहे हैं किसी वेक्टर में, तो आप इसी बात में इंटरेस्टेड हो ना, कोडिंग सीक्वेंस कौन सा है, एक्सोन्स कहाँ के हैं, जो एक्सोन सीक्वेंस है वो कौन सा है. So you might not be interested in the rest of the sequence. Poly-A का सीक्वेंस क्या है, सानू की extra 5' सीक्वेंस कौन सा है, हमें क्या लगे. We only interested in the coding sequence. So that term is called as CCDS. So look at the term CCDS. क्या? नहीं. अच्छा. Okay. Now the consensus cDNA sequence. ये मुझे ना इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है. इसको मैं यहाँ क्यों नहीं कर लेता? कॉमन सेंस. Okay. There is a one way you can reach to the consensus cDNA sequence. One is that you can Google it. You can click on this website. It will take you to the portal. But remember that portal is under the domain of NCBI. That means you can use NCBI codes to find and search the consensus cDNA sequence of different genes. जैसे कि क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या तलाश करना है, क्या आपको एक जीन तलाश करना है, आपको उसका कंसेंसस CCDS ID मालूम है. जैसे वन थिंग द पोर्टल इज आस्किंग यू. अच्छा नहीं मला
अच्छा, क्या आपको उसका जीन आईडी पता है? हाँ मिक यार, मिक जीन। क्या आपको उसका जीन सिंबल पता है? क्या आपको उसका न्यूक्लियोटाइड आईडी पता है? रिमेंबर न्यूक्लियोटाइड आईडी NM डैश समथिंग समथिंग समथिंग। और क्या आपको उसका प्रोटीन आईडी पता है? NP डैश समथिंग। ऑल दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन यूज टू सर्च दैट कंसेंसस cDNA सीक्वेंस ऑफ दैट जीन। इसमें से कई बातें पता है हमें। हमें इसका NM पता है, हमें इसका NP पता है, हमें इसका कंसेंसस cDNA आईडी भी पता है। पता कहाँ लिखा हुआ है वो? ये नहीं बोलना प्लीज, वो ये है, दिस इज CCD 58762.7.1. This thing is called as consensus cDNA sequence ID. ये वो आईडी है जो NCBI ने संभाल के रखी हुई है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए CCDS पोर्टल के ऊपर। So there are two ways to get that sequence. Number one, आपको अगर ये आईडी पता है, आप ये आईडी यहां प्लेस कर दें, कंसेंसस सीडीएस आईडी यहां पुट कर दें, अगर आपको वो आईडी याद है तो। जीन का सिंबल याद है, आप जीन का देखिए, बट जीन सिंबल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ही हो सकती हैं। इट विल गिव यू लाइक मल्टीपल ऑप्शन, देन यू हैव टू पिक वन ऑफ देम। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहां क्लिक करते हैं इसके ऊपर, इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द कंसेंसस सीडीएनए सीक्वेंस पोर्टल एंड टू योर जीन। मैं इसको लेके जाता हूं, ठीक है? ये मैं सबसे आसान वाला काम करने लगा। क्लिक हियर, नाउ वी विल लीव द NCBI and enters into another sub portal which is present beneath the NCBI. तो आप देख सकते हैं हम उसी तरह की जगह पे आ गए हैं, लेकिन ये इसने सर्च कर लिया हमारे लिए already searched the things for us. Look at that. So it has reported what CCDS. Look at this is the sequence which we are looking at. अगर आपको पिछली वेबसाइट याद हो, वापस चलते हैं, उसको भी रखते हैं, सॉरी, ताकि ये भी हमारे पास रहे। भूलना जाना ये मैंने कहा, जब जहां पर जीन की इंफॉर्मेशन होती हैं वहां पर it was written lot of other information. NP भी लिखा हुआ है। मैं राइट क्लिक करता हूं and open in the new window. It will take me to that place and look at the ID. The ID is like 58762.7.1, and that portal searched 5 is the S था यार, sorry yes 87627.1. okay, so किसी जमाने में मुझे ऐसे बहुत अच्छी तरह से याद होता था, अपने नाम से भूल गया। 87627.7, the same thing searched out for me, and look at the information we are having. जीन का नाम क्या है? मिक। क्या हम यही ढूंढ रहे थे? The answer is yes. क्रोमोसोम इस पे है, होमो सैपियंस है, इसकी रीड्स 22 है। लुक एट द डेटा, हम इस डेटा को ब्राउज करते हैं जो उसके नीचे है, ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है। दिस इज द कंसेंसस cDNA सीक्वेंस। ये बिल्कुल वही सीक्वेंस है जो उसने वहां प्लेस किया, और ये भी स्टार्ट कहां से होता है? CTG। आई डोंट नो व्हाई, आप लोग मुझे बताएंगे व्हाई, ठीक है? कि ये मिक जो है ये क्यों शुरू होता है CTG इंस्टेड ऑफ ATG, ठीक है? आप इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं द सीक्वेंस इज प्लेस्ड इन 2 डिफरेंट कलर्स। आपको पता है ये आपने यही बात, ये जो चीजें और टीचर्स का क्या होता है कि दे स्टार्ट टेलिंग यू द राइट थिंग्स कि यहां जाओ, ये इसका मतलब है। लुक एट द थिंग्स, 2 कलर्स, दीस 2 कलर मींस अल्टरनेट एक्सॉन्स। नेक्स्ट एक्सॉन, यहां से लेके यहां तक ये पहले एक्सॉन का सीक्वेंस है, कितना आसान। अगला ब्लू जो है ये सेकंड एक्सॉन का सीक्वेंस है। नेक्स्ट ब्लैक वन इज द थर्ड एक्सॉन सीक्वेंस। कितने एक्सॉन है इसके अंदर कुल मिला के बिग जीन में? हाउ मेनी एक्सॉन? 3 एक्सॉन्स। 3, the first black, this one is the first one. First is the black small one, then very big one, the blue one, and then the black one, third one. We have 3 exons. If you highlight or select, जब मैं इसे माउस को मूव कर रहा हूं ना, आप देख सकते हैं it is highlighting a codon. Can you see? It is highlighting a codon. एक codon, one codon is encoding one amino acid. अगर मैं किसी सीक्वेंस को हाईलाइट करूं ऐसे करके, it will highlight the protein। मेरा अच्छा नहीं है, सॉरी। अगर मैं हाईलाइट करूं किसी सीक्वेंस को, it will going to highlight the protein sequence as well here है। नहीं, ये सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस है।
ब्लू और ब्लैक कलर उसने इस्तेमाल किए हैं आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पर पहला एक्सोन खत्म हो गया, यहाँ से अगला एक्सोन शुरू हो गया। तो लाइक फर्स्ट एक्सोन यहाँ से शुरू, यहाँ पर खत्म हो गया, अगला एक्सोन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, और थर्ड एक्सोन यहाँ से हेल्पिंग अस। ओके, अगर हम किसी कोड को किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सिलेक्ट करते हैं, इट विल आल्सो सिलेक्ट द प्रोटीन सीक्वेंस फॉर अस हियर, हाईलाइट द अमीनो एसिड कि भी आप जिस जगह पे हैं इस न्यूक्लिक एसिड से कौन सा वाला अमीनो एसिड बन रहा है प्रोटीन सीक्वेंस में। जी आपका सवाल हमजा मैंने रोक दिया था, सॉरी। अब हो गया देना। एक्सोन्स क्या होते हैं ये पता है? एक्सोन्स क्या होते हैं? कोडिंग रीजन होते हैं ना। हाँ, तो सारे कोडिंग रीजन है ना ये तीनों के तीनों। इसके अंदर ये पहला एक्सोन का सीक्वेंस है। क्यों कहेंगे इंट्रोन, ये कोडिंग सीक्वेंस है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ठंडी कर देती तो। थिंक फ्रॉम द स्टार्ट, हमारे वी हैव अ जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस, we have a genomic DNA sequence. RNA pol 2 create a transcript out of that genomic DNA sequence. This is from the region which we called as the gene. Gene की जगह पे RNA pol 2 क्या करता है? It creates a messenger RNA, primary messenger RNA. That primary messenger RNA contains 5' UTR, exon, introns, everything. And after that, it is processed. All the introns are spliced out. All the introns are spliced out. We're left with what? 5' UTR and exons, and then the 3' UTR. Now, what you are looking at is the coding region of that messenger RNA. Okay? कोशिश करता हूं. So this is the messenger RNA you used to know, and this is like the first exon from here to here, and then the second exon from here to here, and then the third exon from here to here. What is that region? 5' UTR. What is that region? Let's suppose if protein translation starts, the protein translation start reading that messenger RNA, it encounters the first codon, first nucleotide, it incorporates the first amino acid at that place. Incorporate the first amino acid at this place. So this is like the first amino acid, methionine, will be incorporated at this place. And then it keep producing the protein. So let's suppose the stop codon comes here at this place. So from here, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो region है, that is the portion of that messenger RNA which is involved in the translation to produce protein. ये वो जगह है जिसको प्रोटीन ट्रांसलेशन मशीनरी रीड करके प्रोटीन बनाती है. That does not mean इससे पहले वाला और बाद वाला इंपॉर्टेंट नहीं है. Those are required, but those sequences are not used for the protein translation. ठीक हो गया? Now this portion is called as the coding sequence, and we are looking at that sequence. The why we need to know about this thing, because this is like the primary and important stuff of any gene. But if something is bad here, you might neglect it. But if something is not right in the coding sequence, that means it will going to affect the sequence of the nucleotide. That means the amino acids. That means the protein structure. And I told you at the start of my weird type of explanations about life to you guys, that why we survive, because 98% of our... Okay, I wish watching in the meanwhile. Now the next thing is that now we know how to get the sequence of a certain gene and how we get particularly the sequence of the coding sequence. But how we will going to able to manage these sequences in our computers? अब तो हम रिसर्चर हैं, तो अगर मैं 15 जीन्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस सिग्नलिंग कैस्केड में इन्वॉल्व है, आई शुड बी एबल टू नो अबाउट ऑल दीस थिंग्स. सो मैं इस डाटा को कैसे अपने कंप्यूटर पे रखूंगा, मैं कैसे इसको डील करूंगा? द ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ पुटिंग द डाटा और सेविंग द डाटा इज that people like to copy that sequence. Okay, I will going to copy that sequence from here, and then after that I will copy like this.
ये 2 डबल डैश है, फॉरवर्ड स्लैश, ये भी जरूर कॉपी कीजिएगा। अभी फिलहाल सिर्फ इतने बता रहा हूँ, क्यों करना है फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, कॉपी, आई कॉपी दैट सीक्वेंस। क्या करूंगा मैं इसको, मैं ले जाऊंगा इसको अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, असाइनमेंट वाला बंद कर दूं। ये तलवार मैंने आपको भेज दी है, इसे मैं बंद कर, हाँ मैंने कहा था क्लास में आगे कि आप लोगों को, जी हाँ तो ले लें। हाँ तो आप सीक्वेंस ना रखें अपने पास, हाँ छोटा सा वर्ड ले लें, तो यू डोंट हैव द सीक्वेंस इन दैट केस। तो if you don't need it, then you don't have to। ठीक है, so that is how the sequence is placed here in my Microsoft Word Office। अब आप मुझे बताएं, Microsoft Word एक वर्ड प्रोसेसर है, it will consider these things as alphabets and words। उसको लगेगा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, ये ऐसे हो गया, and it does not make any difference in the sequence and as well as their protein sequences। उसको नहीं लगेगा कि ये क्या सीक्वेंस है क्या नहीं। So that is how the word is not able to, Microsoft Word is not the software where you should put the DNS sequence। You cannot highlight any sequence। अगर मुझे बताना है कि यार ये स्टॉप को डाउन है, ये वाला फॉर एग्जांपल ये वाला स्टॉप को डाउन है, तो आई नीड टू, देयर इज नो वे दैट आई कैन पुट दैट इंफॉर्मेशन। मैं इसको कलर कर सकता हूँ ऐसा करके, हल्का सा इसको रंगीन बना सकता हूँ, लेकिन देयर इज नो वे दैट आई कैन पुट दैट इंफॉर्मेशन देयर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट putting the consensus CDNS sequence। Okay, I am copying that big sequence and then putting back into the Microsoft Word Office। Okay, so I have to format this thing again, like मुझे यहाँ से बैकस्पेस मारना पड़ेगा ऐसे करके, फिर ताकि ये एक तरतीब में आ जाए, इसका फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। आज मेरे साथ है ना, हेल्प ऑफ द जॉब, कहीं पर भी एक बैकस्पेस हुआ, DNS सीक्वेंस गया काम से। You cannot edit and manage these things, it's almost impossible, it will take you to hell, by the way। Okay, let's start another sequence, let's try another sequence now। So let's start, हमने जो अभी ब्राउज किया है, that is the gene which we called as, क्या था वो जीन, ATM जीन था। और आपको पता है ये DNA रिपेयर पाथवे में इन्वॉल्व होता है। हम इसके ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं, 1 2 3 4, चलो फिर भी सही है, चलो इतने बुरे हालात नहीं है। हम इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ब्राउज करने की कोशिश करते हैं, ये इसका NM है, and you can see the consensus CDNS sequence as well from the last page, on the last page and on this page as well। तो ये इसका प्रोटीन, it's quite a big protein, and you see it's such a big, इसका मतलब ये हुआ कि its gene sequence will be very very long as well। oh my god, यहाँ से शुरू था 1 से and ended up where it ended up, oh my god, there 12,901। oh my god, such a big gene। अब इसमें से कोडिंग सीक्वेंस कितना है, इसमें से कोडिंग सीक्वेंस कितना है, you will get it by putting on the CDS। let's go to the, कितने सारे एक्सॉन्स हैं इसके, उसमें सिर्फ 3 थे और इसमें इतने सारे एक्सॉन्स हैं that I have lost। इससे पहले होगा, वरना मैं सर्च कर लूंगा। प्रोटीन ये है, हाँ? जितना मर्जी टाइम लगे, आई मीन अगर आप रिसर्च है ना, यू शुड स्पेंड आवर्स एंड आवर इन दीज थिंग्स। मसलन ये मत सोच, देयर इज नो, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं। आपका जो भी जीन्स है ना, आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो। यू शुड बी द वन हु नो एवरीथिंग अबाउट द थिंग्स यू आर वर्किंग। आपने ना सिर्फ खुद सीखना है बल्कि अपने टीचर्स को भी सिखाना है। मैं CDS पे क्लिक करता हूं तो ये वो पोर्शन है CDS का, ATG से स्टार्ट होता है, तो आंसर इज यस। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द कंसेंसस CDNS सीक्वेंस, CCDS कहां पर है, ये है, दिस वन। इट विल टेक मी टू द another portal where I can see all। अभी मैंने बताया ना बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, अभी जाके देखते हैं कि बहुत सारे एक्सॉन्स हैं कि नहीं। लेट्स सी, we can see lot of exons over there। let's see, okay, can you count how many? ये alternate colors का मतलब क्या है, different exons, too many exons। but where I should put this thing, where I should put these sequences, and how I able to see that if a base pair is changed, what will happen with the sequence of the protein in my own hands? You know, a lot of websites are there, you put the sequence of nucleotide, they will give you the sequence of the protein,
but I'm talking about in your own hand by learning the same things by yourself. So how about copying that sequence? I'm only copying the, how about copying this big sequence? मुश्किल में डालते हैं अपने सॉफ्टवेयर। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कितने है वाला, जीन सीक्वेंस सारे का सारा कॉपी कर लेते हैं, सारे का सारा जीन सीक्वेंस कॉपी कर लेते हैं। कहाँ है? ओके 1 to 12,915 मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये पूरे जीन को कॉपी कर लेगा। आई एम गोइंग टू कॉपी इट, कंट्रोल सी, एंड आई एम टेकिंग इट टू वेयर आई शुड टेक इट टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। I should not actually. So we need certain softwares which should be able to distinguish between nucleotide sequence and alphabets. हम word processor इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें word processor के अलावा कोई बायोइन्फॉर्मेटिक सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए जो डीएनए को डीएनए समझे, जो समझे कि ये डीएनए है। So I have just downloaded in the meanwhile when I was talking with you one of the software called Serial Cloner. Okay, आप next time इसको कर लीजिएगा और अपनी लैपटॉप के साथ ले आइए। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी करें। आई मीन नेवर फील कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाला करें। ओके, जो मैंने कहा है वो ये है कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस समझता हो। अच्छा, ये जरा आसान है और ये है, तो इसलिए मैंने ये लिया। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मुझे याद पड़ता है मैं कोरिया में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता था, दैट वाज अबाउट ओह माय गॉड 12,000, दैट वाज अबाउट $5,000। 12 ये मैंने किसको कॉपी किया बाय द वे? ये पहले वाले का होगा। आई डोंट वांट इट। मेरा लैपटॉप स्लो क्यों है मेरे साथ? मेरे साथ स्लो है? क्या कर सकते हैं? नहीं कोई स्टोन खैर है, तानू ठीक करने लगे मैंने 2 साल लग गए ना ਤੁਹਾਡੇ। कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਡੇ हौली ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ यार। गूगल करना तो मिलना तो हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना, हम ये चीज हमजा मेरी बात सुन, ज्यादा जरूरी, हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना वो ये है कि हमने डाटा रखना कैसे अपने पास। सॉफ्टवेयर को बिल्कुल पता नहीं है कि मैं इसके अंदर क्या पेस्ट करने वाला हूं। मैं लिख सकता हूं अपने हाथों से, मैं बाहर से डाटा पेस्ट कर सकता हूं। ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमारा डीएनए सीक्वेंस का डाटा मैनेज कर सकता है। पहली बात, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो ये सीक्वेंस मैनेज कर रहा है उसका नाम क्या है। इसको क्या पता हो इस सीक्वेंस का नेम क्या है? इसको इट हैज नथिंग टू डू विद एनी फीचर्स ऑफ द सीक्वेंस, ना ही स्निप ना ही कोई और। तो किसी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं। हाँ, अब डीएनए के सीक्वेंसेस एनसीबीआई ने रखे हुए हैं ना, रखे हुए हैं। इसी तरह अगर एनसीबीआई के अंदर एक सब डोमेन खुल जाती है जो कि है, वो ये कहती है कि हम ना ऐसा करते हैं कि जीनोमिक डीएनए सीक्वेंसेस जो स्निप्स है ना उनका डाटा भी रखना शुरू कर देते हैं। हमारा काम उस डाटा को, तो वो क्या करेंगे, वो जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है उसमें से जो स्निप सीक्वेंसेस हैं वो उन स्निप सीक्वेंसेस को अरेंज करना शुरू कर देंगे। अब जब वो स्निप सीक्वेंसेस को अरेंज करेंगे तो उसके लिए वो अलग कोड बनाएंगे, उसके लिए अलग नाम बताएंगे, सीक्वेंस का नाम बनाएंगे और स्निप का नाम लिखेंगे। तो ये डाटा एक्चुअली किसके पास होएगा? एनसीबीआई के पास, जिसने ऑलरेडी अवेलेबल डाटा के अंदर में से स्निप्स को हाईलाइट कर दिया। लेकिन स्निप्स बताए किसने? एनसीबीआई को। एनसीबीआई को ख्वाब तो नहीं आई ना, हम ही लोग ना। एक बंदा इंडिया में रिसर्च कर रहा है, एक बंदा यूके में रिसर्च कर रहा है, उसने पब्लिश किया कि यार ये 4 स्निप्स है इस जगह पे। जैसे आपने रिपोर्ट किया, एनसीबीआई ने उसको पिक किया और उसको एज ए स्निप के तौर पर पेश कर दिया। हमारे लिए स्निप सर्च करना मुमकिन बना दिया किसने? एनसीबीआई। ये इसके पास ये कैपेसिटी है, किसी के पास भी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें डीएनए सीक्वेंस के अंदर बता दे कि यार ये काम की चीज है, ये काम की चीज नहीं है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन सीक्वेंस नहीं है। अगर मैं भी पुट करूंगा तो सॉफ्टवेयर के लिए वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। मैं आपको थोड़ा सा, टाइम कम हो रहा है, जल्दी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में लेके जाता हूँ, मेरे साथ रहना, ठीक है? तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मैनेज करने के लिए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये जो बहुत बड़ा सा सीक्वेंस हमने अभी कॉपी किया था एटीएम का, इसको मैं अब कॉपी करता हूँ। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं होगा। I have to do like this. This is बदतमीजी, लेकिन but I am doing. It's quite a long sequence. So, okay. ये फॉरवर्ड स्लैश दरअसल बायोइन्फॉर्मेटिक सिग्नल होता है, ये हमारा एरिया नहीं है, लेकिन बट आई एम जस्ट पुटिंग इट दैट एक्चुअली हेल्प यू नो व्हाई, बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे ना, इस जब मैं इसको सीक्वेंस को प्लेस करूंगा,
So that sequence will be placed according to the understanding as a DNA sequence. मैं बताता हूँ कैसे. अभी आपने यहाँ पर सीखा था, ये सारे काम आपने ना खुद करने हैं अकेले, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको टाइम स्पेंड करना है, खुद प्ले करना है डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस करके. अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कोडिंग सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होता है, किधर गया, लेट्स स्टार्ट द सीडीएस सीक्वेंस. सीडीएस स्टार्ट कहाँ से होता है, नंबर बता सकते हैं मुझे कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम हियर, एटीजी, एजीटी, सीटी, एजी. कैन यू लेट मी नो कि असल में जीन के ऊपर इसका ये स्टार्ट कहाँ से होता है, मैंने नोट नहीं किया था. थैंक यू वेरी मच. ये है कोडिंग स्टार्ट फ्रॉम 151 एंड्स 9000. ये दो नंबर याद रखेंगे मेरे लिए, ओके ये दो नंबर याद रखना, 151 एंड 9321. मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि डीएनए को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर में और वर्ड में क्या फर्क है. आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सीक्वेंस सर्च नहीं कर सकते. 151 नंबर कहां पर है, क्या ये 151 है जहां से स्टार्ट हो रहा है, इज दैट 151? हाँ काउंट कर ले, अल्ले कर. यस सर. थैंक यू. 151 से कहां तक था, 9000. आई कैन ट्राई मल्टीपल थिंग्स. 320. ओके थैंक. एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं ये कुछ बेस पेयर कॉपी कर लेता हूँ. ओके ओके मेरे साथ रहें. वन ऑफ द वेज दैट मैं कुछ बेस पेयर कॉपी करता हूँ, यहाँ से 10 बेस पेयर कॉपी करता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर में जाता हूँ जिसमें मैंने डीएनए सीक्वेंस रखा है, और इससे कहता हूँ कि मुझे बताओ कि ये वाला सीक्वेंस कहाँ पे है. हाउ टू प्ले विद दिस सीक्वेंस, यू कैन ट्राई यूट्यूब एंड वन ऑफ माय वीडियो है कि सिलेक्ट नोड पे कैसे काम करते हैं. तो मैं इसको सर्च करूंगा, उसी तरह कंट्रोल F दबाता हूँ, इट विल गिव मी दिस सर्च बॉक्स ऑप्शन एंड माय फेस एज वेल. ओके यहाँ पर इसको हम सर्च कई तरीकों से कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के तौर पे, पेप्टाइड सीक्वेंस के तौर पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट की मदद से एंड ओपन रीडिंग फ्रेम्स की मदद से. तो हम सर्च करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिहाज से. आई विल पुट द पेज द सीक्वेंस. इट टेल्स मी दैट सीक्वेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 151. इज इट इंटरेस्टिंग? It tells me it starts from where? From 151. From the same place. Let वो हम कर सकते हैं ना अगर हम करना चाहें तो, लेकिन अभी तो मैंने इसको कहा है ना कि मुझे वो जगह दिखाओ कि वो सीक्वेंस कहाँ है. It starts. Can you see the highlighted portion? It's 137. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 151. तो यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, कोडिंग सीक्वेंस. अगर मैं चाहता हूं ना, मैं इसको इस हाईलाइट को ना, यार इसको आई वांटेड टू अटैच सम इंफॉर्मेशन एट दैट प्लेस. मैं क्या करता हूं कि मैं फीचर्स में जाऊंगा, ये भूल जाने वाली बातें याद रखना, ठीक है. सिलेक्ट वेयर यू वांट टू ऐड फीचर्स. एनसीबीआई में देखे थे फीचर्स, अभी एनसीबीआई में देखा था ना, सीडीएस सीक्वेंस, एक्सोन, वो ऑल फीचर्स थे. अब ये फीचर्स मैं बना रहा हूं अपने पास, तो हम क्या करेंगे, वी गो टू द फीचर, क्लिक ऑन द प्लस साइन. ये सारे वो ट्रेडिशनल तरीके हैं जो आप लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं. क्लिक ऑन द प्लस साइन, आई विल राइट द नेम. ये क्या है बोला, ये स्टार्ट ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस है, तो मैं लिखता हूँ स्टार्ट ऑफ द कोड. मेरी मर्जी है, मैं आगे जो है वो प्रदेश भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, वहां पे लिख सकता हूँ, जो मर्जी मेरी मर्जी. इसको हम अपनी मर्जी का कलर भी दे सकते हैं. कौन सा कलर पसंद है आपको? रेड, खतरे के साइन वाला. ओके रेड कलर. एंड देन व्हेन यू गो बैक यू कैन जस्ट लीव दैट थिंग, द सीक्वेंस इज हाइलाइटेड इन दैट कलर. अगर मैं उस माउस को उस कलर पे ऊपर लेके जाऊंगा, उस पे कर्सर को वहां लेके जाऊंगा, इट विल लेट मी नो कि यार दिस इज द स्टार्ट ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस. दैट मींस आई हैव हाइलाइटेड दैट प्लेस अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग. अब जो मैं चीजें भी यहाँ पे प्लेस करूंगा वो मेरी रिसर्च के मुताबिक होंगी. वो मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि इस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दिस इज वेरी क्रिटिकल पार्ट, दिस इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द active side of the enzyme, this is involved in the interaction with other protein, this, so you can put anything which you want at that time. Okay, shortcut देखना, जरा सॉफ्टवेयर का कमाल देखना. हाँ निम्रा, आपने वो याद करके रखा हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम 155 एंड्स वेयर 9321. लुक एट दैट, मैंने सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मुझे फ्रॉम 155 टू 9321 का सीक्वेंस जो है वो दिखा दे. ओके, सो 2
थैंक यू, इट विल हाईलाइट दैट पोर्शन फॉर मी डायरेक्टली। और आप देखेंगे ये वही सीक्वेंस होगा जो एनसीबी एनएससीडीएस का था। इट रिस्पेक्ट द नंबर्स जो हमने कहा है उसको। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फीचर दे सकते हैं, करके देखते हैं। ये सीडीएस सीक्वेंस है ना, मैं इसे कह देता हूं कि यार ये एक सीडीएस, इस पूरे को वो हाईलाइट कर देगा एज सीडीएस सीक्वेंस एंड ओके, सो नाउ दिस ऑल इज अ सीडीएस सीक्वेंस। लेकिन डीएनए सॉफ्टवेयर जो होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, उनकी अच्छी बात ये होती है कि वो आपकी और भी कई तरह से मदद कर सकते हैं। वो आपको अपने डीएनए को अलग तरीके से देखने में मदद दे सकते हैं। आपको जहां से सीक्वेंस स्टार्ट होता है वहां से मिथायोनिन होता है, कोडिंग सीक्वेंस जहां से स्टार्ट होता है, एंड वेयर इट एंड्स वहां पे क्या होता है, स्टॉप कोडॉन। मैं इस सॉफ्टवेयर से कहता हूं कि मुझे सीक्वेंस मैप दिखाए, मैं इधर उधर क्लिक कर रहा हूं, आप लोगों ने और भी इधर उधर क्लिक करना है, जो आपको दिल करे आपने, यू जस्ट नीड टू प्ले विद दैट थिंग। आई एम जस्ट शोइंग यू कपल ऑफ थिंग्स इट कैन डू। ये वही वाला सीक्वेंस है, इट एक्चुअली शोइंग अस lot of things about that sequence. It is giving us 3 frames. Every sequence has 3 frames of producing protein. Frame 1, frame 2, frame 3. Okay? How long that will be? क्या हमें restriction enzyme sites चाहिए? हमें देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको टर्न ऑफ कर रहा हूं। ये रेड का मतलब क्या है? This is the place where, क्या यहां पर मिथाइलिन की नजर आ रहा है आपको? 151 पे होना चाहिए ना यहां पर। कैन यू सी द एम हियर? कौन से फ्रेम में है? फर्स्ट फ्रेम में, सेकंड फ्रेम में, थर्ड फ्रेम में? वो फर्स्ट फ्रेम में है। ये देखो मिथाइलिन, 3 लाइनें है ना, तो फर्स्ट लाइन के अंदर मिथाइलिन आता है ना, तो ट्रांसलेशन फ्रेम कौन सा है? फर्स्ट फ्रेम। सो आई डोंट नीड फ्रेम नंबर 2, आई डोंट नीड फ्रेम नंबर 3। तो प्रोटीन सीक्वेंस कैसे बनेगा? ये जो अब आप देख रहे हैं, एम आगे एस आगे एल आगे। फ्रेम, जो ट्रांसलेशन फ्रेम होता है उसकी पहचान ही होती है कि उसके रास्ते में स्टॉप को डाउन नहीं आता until unless the very end। फ्रेम ये होता है कि हर एक जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना, उससे हम 3 अमीनो एसिड्स, 3 किस्म के प्रोटीन सीक्वेंस स्टार्ट कर सकते हैं। वो बात की बात है। उसी एमफिल में ना मेरे खा लेंगे लोगों ने कहना कि मास्टर बहुत जालिम मारता है। अच्छा, अब ये समझ लो, ये बहुत जरूरी बात है। मैं अगली बात बताने लगा था कि मैं रुका हूं, ये इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, हाउ इट कैन गिव अस 3 डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोटीन। मैं बताने लगा हूं ना, मैं समझा, बस आपने समझना है। सो यहां से ये हमारे पास सिर्फ ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, ये ऊपर वाला, ठीक है ना, ये वाला ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा। जब ट्रांसलेशनल मशीनरी इसको पकड़ेगी मैसेंजर आरएनए को एंड स्टार्ट ट्राइंग टू क्रिएट प्रोटीन, वो क्या कर रही होगी? वो सेंस करेगी एटीजी को, वो सेंस करेगी एटीजी को। ओके, स्टार्ट सेंसिंग द एटीजी की। एटीजी कहां पे आता है? इसके ऊपर आप यूं समझे जैसे कोई रोलर कोस्टर करता ना, तो इसके ऊपर ट्रांसलेशन मशीनरी इसके ऊपर रोलर कोस्टर कर रही होगी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर। क्या ढूंढ रही होगी? एटीजी। अब एटीजी का कॉम्बिनेशन किसी भी सीक्वेंस में पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर अगर पहले फ्रेम को रीड करता हुआ आ रहा होगा, वो पहले फ्रेम को रीड करता हुआ आ रहा होगा, कौन? ट्रांसलेशनल मशीनरी। तो उसको पहले फ्रेम में यहां पर क्या मिलेगा? ए, इसके इमीडिएट बाद क्या मिलेगा? टी, और इसके इमीडिएट बाद क्या मिलेगा? जी। दैट गोइंग टू कोड व्हाट? दैट विल गोइंग टू कोड मिथाइलिन। जो पहला मिथाइलिन मिलता है ना, तो वो वहां से प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। लेकिन 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 अगर ट्रांसलेशन मशीनरी सेकंड फ्रेम को सेंस कर रही होगी, या वो उसको एक प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस के तौर पे मान रही होगी, तब वो पता कहां पर आएगी? लुक एट दैट। तब उसके लिए ये वाला सीक्वेंस एटीजी नहीं होगा, तब उसके पास ये वाला सीक्वेंस होगा सीएटी। समझ आई? मैं बात हूं, मुझे कॉपी पेंसिल चाहिए समझाने के लिए। ओके, दोबारा बात हूं। अगर हम चाहते हैं किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की प्रोटीन ट्रांसलेशन करना, हम तो मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। मैसेंजर आरएनए विल गो टू साइटोप्लाज्म। अब ट्रांसलेशन मशीनरी उसके ऊपर जाकर सेंस करना शुरू करेगी, सीक्वेंस को रीड करना शुरू। 3 अमीनो एसिड्स, सॉरी 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट करते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज सी, दिस इज टी,
this is G, this is A, this is T, and then there is a G. तो ट्रांसलेशन मशीनरी चलती हुई आ रही है. अगर उसका रीडिंग फ्रेम, किसका, ट्रांसलेशनल मशीनरी का रीडिंग फ्रेम, ये कहेगा कि ये पहला कोडॉन है, पहला बेस पेयर है. कोडॉन में कितने बेस पेयर होते हैं? 3. तो दिस इज द नंबर 2, दिस इज द नंबर 3. वो इन तीनों को मानेगा कि ये तीनों क्या है, एक कोडॉन है. मेंबर नंबर 1 कौन है? C. मेंबर नंबर 2 कौन है? T. एंड मेंबर नंबर 3 कौन सा है? G. Whether it will going to incorporate methionine, the answer is no. वो प्रोटीन ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं करेगा. मूव टू द मशीनरी, शिफ्ट हो जाएगी अगले कोडॉन पे. अगले कोडॉन का मेंबर नंबर 1 कौन सा है? A. मेंबर नंबर 2 कौन सा है? T. मेंबर नंबर 3 कौन सा है? G. तो ट्रांसलेशन मशीनरी ये समझेगी कि दिस कोडॉन विल गोइंग टू इनकॉर्पोरेट methionine, दिस इज द स्टार्ट कोडॉन, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग प्रोटीन ऑर्डर. अब जरा और सिचुएशन को थोड़ा सा गंभीर करके देखते हैं. इफ द ट्रांसलेशन मशीनरी स्टार्टेड, वो जिस फ्रेम में आ रही है उस फ्रेम के मुताबिक ये तीनों कोडॉन है, ये तो पॉसिबल है. दिस इज गोइंग टू बी द कोडॉन नंबर 1, मेंबर नंबर 1, दिस विल बी द मेंबर नंबर 2, दिस विल बी द मेंबर नंबर 3. तो ये तीनों एक अमीनो एसिड कोड करते हैं. क्या वो मेथायोनिन है? द आंसर इज नो. उसके बाद दिस इज गोइंग टू बी द मेंबर नंबर 1. अगला कोडॉन कौन सा होगा? TGA. This is going to be the member number 1 of the codon, member number 2 of the codon, and this is going to be the member number 3 of the codon. ये methionine कोड करते हैं. The answer is no. Still move further. This is the member number 1, T. Member number 2 कौन होगा? G. Member number 3 कौन सा होगा आगे? तो ATG मिस हो गया ना. If the reading frame is not in line with the ATG, तो उस सूरत में ट्रांसलेशन मशीनरी उसको स्किप कर देगी, वो उसको मेथायोनिन समझेगी नहीं. तो जो रीडिंग फ्रेम है जिस पे प्रोटीन बनेगी, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, डिपेंडिंग के रीडिंग फ्रेम इनिशिएट कहां से होता है. इसका मतलब है कि इस एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नतीजे में 3 प्रोटीन के सीक्वेंसेस बन सकते हैं थ्योरेटिकली, डिपेंडिंग के कोडॉन का पहला मेंबर किसको कंसिडर किया गया है. इस केस में नोट करें, पहला मेंबर है T. क्या ये मैं पहला मेंबर है T, दूसरा मेंबर है T, तीसरा मेंबर है G. तो TTG कोड करता है L को. अगर पहला मेंबर किसको कंसिडर किया गया है? TTG. तो TTG विल बी द फर्स्ट कोडॉन. ये कोडॉन किसको इनकॉर्पोरेट करेगा? L. तो ये L वाला जो है, ये दूसरा वाला, ये सेकंड फ्रेम है जो यहां पर दिखाया गया है. अगला कोड कौन सा होगा? ACC. ACC will going to incorporate T. तो जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो सब कहां से बिलोंग कर रहे होंगे? सेकंड फ्रेम से. नाउ थिंक अबाउट, अब पहले वाले को भूल जाओ, ये पहले वाले T को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट T. अगर रीडिंग फ्रेम शुरू होता है दूसरे वाले बेस पेयर से, तो पहला कोडॉन क्या बनेगा? TGA. एंड TGA will incorporate what? It will incorporate stop codon. TGA स्टॉप कोडॉन इनकॉर्पोरेट करेगा. तो ये कौन सा वाला फ्रेम है? थर्ड. TGA के बाद नेक्स्ट मेंबर कौन सा है? CCT. इट विल इनकॉर्पोरेट P एंड दैट इज हाउ इट विल क्रिएट द थर्ड फ्रेम. अब एक और ऑप्शन देख, अगर ये स्टार्ट होता है G से, अगर ये स्टार्ट होता है G से, दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस GAC, दैट विल गिव यू द D. फर्स्ट फ्रेम है. तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर द कोडॉन एक्चुअली पिकिंग द फर्स्ट बेस पेयर. लेकिन उन तीनों में से दुरुस्त कौन सा है, ये बात समझने वाली है. मिथेनिन, मेथायोनिन, इन तीनों में से दुरुस्त वो वाला होगा. ये हमने नहीं, हम तो ऑलरेडी जीन की प्रोडक्ट को देख रहे हैं, हमने तो एनालिसिस थोड़ी की है, हम तो ऑलरेडी जीन को देख रहे हैं. तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी ने मुझे कहा है, if somebody tells us this is the sequence of the gene, that the gene sequence should start from methionine. तो इन तीनों फ्रेम्स में मेथायोनिन पहले वाले फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए फर्स्ट फ्रेम इज द रियल फ्रेम. और आप नोट कर लेंगे बाकी दोनों फ्रेम्स में आगे जाके स्टॉप कोडॉन आता है, पहले वाले फ्रेम में कभी स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा एंड तक. इसलिए मैंने कहा था कि यार दूसरा भी निकालो फारग है, तीसरा भी निकालो फारग है, इसके रास्ते में स्टॉप आएगा. लेकिन आप नोट करना कि कभी भी स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा फर्स्ट फ्रेम के रास्ते में जब तक के एक्चुअल स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता. अब अगर मुझे बताओ, अगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक बेस पेयर निकाल दें, अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में एक बेस पेयर, मैं अगली दफा करके दिखाऊंगा आपको,
बेस पे निकाल दें, फ्रेम चेंज नहीं हो गया, इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। जब फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा तो वो बजाय इनकॉर्पोरेट करने के स्टॉप करो, इनको इनकॉर्पोरेट कर दे, हु नोस क्या बन जाए, हम खुद बना के दिखाएंगे कि क्या बनेगा उस टेम्परेचर। इट मे बी अ डिफरेंट प्रोटीन, और ये ट्रबल है। लेकिन हम इसमें देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ये तब्दीलियां हम देख सकते हैं, अभी नहीं, अभी इतना काफी टाइम ऊपर हो गया और आपने इसको बोलना नहीं है। अच्छा